Good morning and Assalamu alaikum to everyone. I hope you all are fit and fine at your place. My name is Shaiza Yakat and I am going to teach you physics. First of all, congratulations to all of you for your new academic year, and I wish that this academic year will be the brightest year of your life. Today our topic is Introduction to Physics. Why there is a need to teach you physics and what is the purpose of physics in our daily life, why physics is very important to us. All these questions are answered in today's lecture. First of all, in our daily life, we have seen many phenomena like the conversion of day to night and then night to day. All these questions are answered by physics. First of all, we learned that what is science? Because physics is the branch of science, so we need to learn about science. Science is basically the combination of two things. Number one, observation, and the second one is experimentation. So the knowledge gained through observation and experimentations is called science. अब देखिए हम बहुत से फिनोमिनाज हैं जो अकर होते हैं हमारी लाइफ में, हम देखते हैं जैसे कि मैग्नेट की हम एग्जांपल लेते हैं that why magnets south and north pole always attract each other and why the same pole like south and south or north and north always repel each other. Physics is the part of science that tells us about the laws of nature. All the laws of nature are answerable by physics. So first of all, the definition of physics is that it tells us about the laws of nature that we see and that occurs in our daily life. For example, the question arises, why an object always falls down but not in the upward direction? And the second example we can take is a stone. ठीक है, अब देखिए आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हम अगर पानी में किसी पत्थर को फेंकते हैं तो वो डूब जाता है। तो हमारे माइंड में ये बात आती है कि क्यों डूब जाता है, ऐसा क्या लॉ है, ऐसा क्या फिनोमिना है जिसकी वजह से जो स्टोन है वो डूब गया। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इतने बड़े बड़े बहरी जहाज है वो तो पानी में खड़े रहते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन हमारे माइंड में खड़े होते हैं ये कौन हमें बताता है, इसका आंसर फिजिक्स बताता है। ठीक है, अब इसमें डेफिनेशन पढ़ी है। सबसे पहले वेरी फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ योर बुक इज ऑफ साइंस द नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, यानी कि जितनी भी हम ऑब्जर्वेशन करते हैं उससे हमें जो भी नॉलेज मिलता है, जो भी हम रिसीव करते हैं, एंड एक्सपेरिमेंटेशन, और जितने भी हम तजर्बे करते हैं उस नॉलेज पर, उन सबके कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं साइंस। The knowledge gained through observation and experimentation is called science. The word science is derived from Latin word scientia. Okay, Latin word से ये derive हुआ है साइंस का वर्ड। अब थोड़ी सी हम हिस्ट्री देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब फिजिक्स को रीड करने से पहले till 18th century हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट था कॉल्ड नेचुरल फिलोसफी। जितनी भी साइंस थी, जितने हमारे ऑब्जर्वेशन थी, हमारे एक्सपेरिमेंटेशन से, उन सब को हम किस सब्जेक्ट में रीड करते थे, कॉल्ड नेचुरल फिलोसफी। बट नॉलेज इंक्रीज्ड, देन इट वाज डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस। जैसे जैसे नॉलेज इंक्रीज होता गया तो हमने क्या किया, साइंस को डिवाइड कर दिया टू ब्रांचेस। नंबर वन इज फिजिकल साइंस एंड द सेकंड वन इज बायोलॉजिकल साइंस। अब फिजिकल साइंस में जितनी भी हमारी नॉन लिविंग थिंग्स है वो सारी की सारी किससे कंसिडर होंगी, नॉन लिविंग थिंग्स। फिजिकल साइंस में
तो डेफिनेशन क्या हुई फिजिकल साइंस की, which deal with the study of non-living things. And the second one is biological science, which are concerned with the study of living things. First of all, हमने क्या रेड किया, साइंस की डेफिनेशन. साइंस का वर्ड डिराइव हुआ कहाँ से, scientia, that is a Latin word. उसके बाद जितनी भी साइंस में किसमें रीड करते थे हम, नेचुरल फिलोसफी में. लेकिन जैसे जैसे हमारा टाइम गुजरता गया, as the knowledge increased, we divide the natural philosophy subject into two branches. Number one is physical science, that is concerned about the non-living things, and the second one is biological science, which is concerned with the study of living things. आपकी इस चक्र में, that is physical quantities and measurement, we are going to read all the physical quantities and the measurement, their procedure, how to take their measurements, their readings, all these things. Okay, so physical science को फिर हमने आगे सब डिवाइड कर दिया 5 branches. Physical science is subdivided into 5 branches. Number one is physics. Second one is chemistry. Number third, astronomy. Fourth, geology and meteorology. 5 branches है, जिसमें सबसे ज़्यादा important है physics, then chemistry, then astronomy, geology and meteorology. तो ये किसकी बात हो रही है, फिजिकल साइंस. ये जितनी भी ब्रांचेस है ये सारी किससे कंसर्न करती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स से. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिक्स क्या है. फिजिक्स इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप. फिजिक्स किससे कंसर्न करती है, मैटर, एनर्जी एंड देयर relationship. अब matter क्या चीज, what is matter? Anything that occupies space and has a volume is known as matter. Stone है matter, a chair क्या है matter, book, pencil, मतलब जितनी भी चीजें हम देखते हैं जो space occupy करती हैं, जिनका कोई weight है, कोई mass है, वो सारी क्या है, matter. इसी तरह से एनर्जी की भी डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती है, लाइक इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी. ये जितनी भी सारी है ये क्या चीज है, एनर्जी है. फिजिक्स में हम क्या रीड करते हैं, मैटर को, एनर्जी को एंड देयर इंटरेक्शन. ये जो मैटर और एनर्जी है आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, ये सारी क्या होगी फिजिक्स में. तो डेफिनेशन क्या होगी फिजिक्स की, इन फिजिक्स वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन. द लॉज एंड प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड नेचर. अब जो फिजिक्स है, फिजिक्स की भी आगे ब्रांचेस, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, नेचुरल फिलोसफी सब्जेक्ट था, जिसको सब डिवाइड किया हमने 2 subjects में. नंबर 1 फिजिकल साइंस, सेकंड वन इज बायोलॉजिकल साइंस. फिर हमने देखा कि फिजिकल साइंस को सब डिवाइड किया है 5 डिस्टिंक्ट ब्रांचेस में. इसमें फर्स्ट वन है फिजिक्स, सेकंड वन इज केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी. फिजिक्स में तो हमने देखा था मैटर, एनर्जी और उनकी इंटरेक्शन को रीड करते हैं. इसी तरह केमिस्ट्री की अगर बात करें तो उसमें हम केमिकल रिएक्शंस, जितने भी केमिकल्स है इन सब को रीड करेंगे. एस्ट्रोनॉमी बेसिकली इज द स्टडी ऑफ स्टार्स. जियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अर्थ. व्हाट इज द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अर्थ, व्हाट इज द रोटेशन ऑफ अर्थ. ये जितनी भी बातें हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ये सारा हम किससे रीड करेंगे, जियोलॉजी. एंड मेट्रोलॉजी होती है द स्टडी ऑफ वेदर. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कंसर्न है फिजिक्स में. और फिजिक्स की आगे ब्रांचेस हैं 9. फिजिक्स को हमने सब डिवाइड किया है 9 ब्रांचेस में. ठीक है, अब नंबर 1 इज मैकेनिक्स.
ये जो येलो बॉक्स आप देख रहे हैं इससे ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स आपकी लिखी हुई है और सबकी डेफिनेशन भी है एंड दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, so you must have to learn each and every definition. Number one is mechanics. अब mechanics में हम क्या देखते हैं? The study of motion of objects, its causes and effects. यानी कि कोई भी बॉडी है वो किस तरह से मूव कर रही है, क्या कॉज है उसकी मूवमेंट का और उसकी मूवमेंट से क्या इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जांपल एक कार है, एक पॉइंट ए पे, उसने हमने पॉइंट बी तक ट्रैवल करवाया है, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, उस कार की स्पीड क्या थी, वो कार किस तरह से स्टॉप हुई, अगर उसने कोलाइड किया है किसी चीज को तो उसका क्या इफेक्ट हुआ, ब्रेक हमने अप्लाई की तो कार स्टॉप हो गई, बाय व्हाट इज द रीजन। ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी हम किसमें रीड करेंगे, मैकेनिक्स में। सो द फर्स्ट ब्रांच इज मैकेनिक्स and defined as it is the study of motion of objects, its causes and effects. Okay, then second one is heat. Heat and thermodynamics में हम इसे कह सकते हैं heat and thermodynamics. It deals with the nature of heat, modes of transfer and effects of heat. ठीक है, अब इसमें देखिए तीन चीजें आ जाती हैं। नंबर वन इज नेचर ऑफ हीट, इसमें क्या आ जाएगा, जितनी भी हीट एनर्जी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अ बिग सोर्स ऑफ हीट इज सन, सनलाइट जितनी भी हमारे तक पहुंच रही है किस तरह से हम तक रीच कर रही है, सनलाइट से क्या प्रोड्यूस होता है, ये जितना भी है किस तरह से सनलाइट हमें पहुंच रही है, ये जितनी भी बातें हैं ये सारी किसमें आ जाएंगी, नेचर ऑफ हीट में। सेकंड वन इज मोड ऑफ ट्रांसफर, यानी कि हीट किस तरह से ट्रांसफर होती है, हाउ द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर। ठीक है, इसमें जितनी भी कंडक्शन, रेडिएशन, कन्वेक्शन, इवेपोरेशन, ये जितनी भी चीजें हैं वो सारी हम किसमें रीड करेंगे, हीट में। आपकी बुक के जो लास्ट टू चैप्टर्स हैं दैट इज अबाउट heat and heat conversion and thermodynamics. थर्ड थिंग आ जाती है इफेक्ट्स ऑफ हीट, कि हीट की इफेक्ट्स क्या क्या है, वो किस तरह से कॉज होती है, ये जितनी भी बातें हैं जैसे कि सनलाइट ड्यूरिंग समर एंड सनलाइट ड्यूरिंग विंटर, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये जो बातें हैं ये सारी हम किसमें पढ़ेंगे, इसमें। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ हीट। थर्ड पे हमारे पास क्या है ब्रांच, दैट इज कॉल्ड साउंड। ओके, साउंड। अब साउंड में हम देखेंगे कि साउंड की जो प्रोडक्शन है वो किस तरह से होती है, नहीं बोल रही है तो प्रॉपर्टीज क्या है, साउंड की एप्लीकेशन क्या है, साउंड वेव्स किस तरह से प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जांपल क्या ये लीनियर मोशन में वर्क करती है और क्या इनकी मोशन वाइब्रेटरी होती है। ठीक है, किस तरह से प्रोड्यूस होती है, किस मीडियम में प्रोड्यूस होती है, किस तरह से हम सुन सकते हैं। लाइक अब जैसे मैं बोल रही हूँ तो आप मेरी आवाज कैसे सुन रहे हो, आपका ईयर है उसमें ईयर ड्रम होता है, वो वाइब्रेट होगा तो आपको मेरी आवाज जो है वो सुनाई देगी। अब इसी तरह से अब हम इसकी प्रॉपर्टीज जो है साउंड की वो देखेंगे कि क्या ये डैम्प्ड है या अनडैम्प्ड है। ठीक है, अब डैम्प्ड और अनडैम्प्ड में फर्क आ जाता है। डैम्प्ड वो होती है जो कि विद रिस्पेक्ट टाइम खत्म हो जाती है, अनडैम्प्ड होती है जो कि चलती रहती है। अब मेरी आवाज है, मैं बोल रही हूँ, जब तक मैं बोलूंगी तब तक आपको मेरी आवाज आएगी, लेकिन जैसे ही मैं चुप हो जाऊंगी आपको मेरी आवाज नहीं आएगी। तो हम जो बोलते हैं जितनी भी आवाजें सुनते हैं ये सारी क्या है, डैम्प्ड है। क्या क्यों डैम्प्ड है, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम खत्म हो जाती है, एंड हो जाती है। अब इसी तरह से हम साउंड की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, वेयर आर साउंड यूज्ड, कहाँ यूज होती है, किस तरह से प्रोड्यूस होती है, ये जितनी भी बातें ये सारी किसको डिस्कस करेंगे, साउंड में। अब फोर्थ ब्रांच ऑफ फिजिक्स क्या है, लाइट और ऑप्टिक्स। It is the study of physical aspects of light
its properties, working and use of optical instruments. इसके देखिए 4 things आ जाते हैं. Number 1 physical aspects, second one is the properties, third one is the production or the working of light, and number fourth one is optical instruments. अब इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखते हैं सनलाइट. लाइट है ना, लाइट एनर्जी है. किस तरह से हम लाइट को देख सकते हैं, किस तरह से लाइट प्रोड्यूस होती है, लाइट जो है उसकी फॉर्म क्या होती है. इसी तरह से मिरर्स में जितने भी हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, लेंस है, ये जितनी भी चीजें हैं, ग्लासेस हैं, ये सारी हम किस में रीड करेंगे, लाइट में. लाइट किस तरह से बेंड होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या चीज है, किस तरह से लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर होती है. ये जो भी है, जितनी भी बातें हैं, ये सारी हम किसमें रीड करेंगे, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स में लाइट, और यू कैन आल्सो से ऑप्टिक्स. अब लाइट है, लाइट हम किस किस तरह से हासिल कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल ट्यूबलाइट है, बल्ब है, टॉर्च है, ये जितनी भी है सोर्स ऑफ लाइट, इसका कॉज हम देखेंगे किस तरह से ये प्रोड्यूस हो रहे हैं. ठीक है. इसी तरह से फिर आपके इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं, आपके ग्लासेस हैं, आपके लेंस हैं, जितने भी माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, ये जितनी भी चीजें हैं, ये सारी चीजें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. इसको भी हम रीड करेंगे किस ब्रांच में, फिजिक्स की, लाइट. आगे फिफ्थ आ जाती है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. अब इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म क्या है, ठीक है. अब इसमें हम क्या देखेंगे, चार्ज. जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं जो रेस्ट पे हैं या फिर मोशन में, ठीक है. अगर तो हमारे जो चार्जेस हैं वो रेस्ट पे होंगे तो कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी. जब तक चार्जेस मोशन में ना आए, यानी कि हरकत में ना आए, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो सकती. ठीक है. इसके साथ साथ हम क्या देखेंगे कि रिलेशनशिप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद मैग्नेटिज्म. मैग्नेटिज्म से, मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी का क्या रिलेशनशिप है. ठीक है. किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को हम मैग्नेट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, किस तरह से हमारे घर में लाइट जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, करंट क्या चीज है, वोल्टेज क्या है, हमारे घर में कितना करंट आता है, ट्रांसफार्मर क्या है, ये जितनी भी बातें हैं जो होम अप्लायंसेस है वो किस चीज पर वर्क कर रही है, किसको कितने वोल्टेज रिक्वायर्ड है, ये सारी बातें जो भी है ये सारी किसमें पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. मैग्नेटिज्म में वही बात अब आ जाती है कि मैग्नेट है, इनके जो साउथ एंड नॉर्थ पोल है वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं. तो क्यों करते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. क्योंकि बेटे ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी किसमें आ जाती है, फिजिक्स की ब्रांच में, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. अब इसके अलावा हम देख सकते हैं कि हमारी जो सराउंडिंग में करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है. ठीक है. तो वो क्यों प्रोड्यूस होती है. ठीक है. अब आपने देखा होगा अगर आपके हाथ गीले हैं या कोई गीली जगह पर आप खड़े हैं और आप अगर किसी वायर को टच कर देते हैं जिसमें करंट प्रोड्यूस है, ठीक है, तो आपको शॉक लगता है, आपको करंट फील होता है. तो वो करंट क्यों फील होता है, ये जितनी भी बातें हैं ये हम इसमें रीड करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. सिक्स्थ पे कौन सी ब्रांच आ जाती है फिजिक्स की, एटॉमिक फिजिक्स. एटॉमिक फिजिक्स नेम से जो है रिप्रेजेंट हो रहा है कि वहां से किसकी बात होगी, एटम. ठीक है. एटम का स्ट्रक्चर क्या है, एटम की प्रॉपर्टीज क्या है, एटम को किस तरह से अरेंज किया जाता है, इसकी अरेंजमेंट क्या है, ये सारी जो बातें हैं वो किसमें आ जाएंगी, एटॉमिक फिजिक्स. इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम. ठीक है. कि एक एटम है उसे किस तरह से हमने बाउंड किया हुआ है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, मतलब एक एटम है उसकी शेप क्या है. ठीक है. ये जो बातें हैं सारी किसमें आ जाएंगी, एटॉमिक फिजिक्स. अब हमारे पास सेवेंथ पे आ जाती है न्यूक्लियर फिजिक्स.
Nuclear physics deals with the properties and behavior of nuclei and the particles within the nucleus. सबसे पहले बेटे ये कंसिडर किया गया था कि जो एटम है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे नॉलेज इंक्रीज हुआ तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है। अगर हम एटम को ब्रेक करते हैं तो उसमें और भी बहुत से जो है पार्टिकल्स वो देखने को मिलते हैं, माइक्रोस्कोपिक जो है पार्टिकल्स वो हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। अब प्रोटॉन क्या है, जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं वो सारे प्रोटॉन हैं, पॉजिटिव पार्टिकल्स। एंड न्यूट्रॉन क्या है, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। सेम ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम जो एटम का न्यूक्लियस है उसको रीड करेंगे, ठीक है। न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्टिकल्स जो है वो प्रेजेंट हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, ये जितनी भी सारी बातें इसमें आ जाएंगी न्यूक्लियर फिजिक्स में। इसके बाद हमारे पास आ जाता है प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैस, एंड द फोर्थ वन इज प्लाज्मा. It is the study of production properties of the ionic state of matter. अब इसमें हम क्या क्या देखेंगे कि जो आयन्स है वो किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। जो आयन्स है उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। और ये जो फोर्थ स्टेट है प्लाज्मा, इट इज द मोस्ट अबंडेंट स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। हमारे मैटर में सबसे ज्यादा क्या है, आयन्स है। इसके बाद जो आ जाती है ये जितनी भी बातें हैं कि आयन्स किस तरह से प्रोड्यूस होती है, क्या प्रॉपर्टीज है, किस तरह से वर्क करती है, ये जितना भी सब कुछ है ये हम पढ़ेंगे प्लाज्मा फिजिक्स। इसके बाद आ जाता है बेटे जियो फिजिक्स। अब जियो का मीनिंग होता है अर्थ, ठीक है। तो जियो फिजिक्स के नेम से जो है वो हम पता चल रहा है कि क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। हमारी जो अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर है इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जो हमारी अर्थ है उसकी ऑर्बिटल स्पीड क्या है, वो किस ऑर्बिट में मूव करती है, अर्थ की रोटेशन क्या है, ठीक है, अर्थ की लेयर्स कितनी है, ये जितनी भी सारी बातें हैं ये किसमें आ जाएंगी, जियोफिजिक्स में। अब हमने सबसे पहले क्या रीड किया, साइंस की डेफिनेशन, ठीक है, क्या था, नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज कॉल्ड साइंस। फिर इसके बाद हमने देखा कि ये जो साइंस है ये कहाँ से डिराइव हुआ है, ये वर्ड लैटिन वर्ड है, डिराइव हुआ है साइंशिया से, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा कि जितनी भी नॉलेज थी वो सारी हम एक ही सब्जेक्ट में रीड करते थे कॉल्ड नेचुरल फिलॉसफी। लेकिन जैसे जैसे नॉलेज इंक्रीज हुई, टाइम गुजरता गया, ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन होते गए, तो नॉलेज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई और इसे एक ही सब्जेक्ट में कैटर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस नेचुरल फिलॉसफी को सब डिवाइड कर दिया टू सब्जेक्ट्स, ठीक है। जो टू स्ट्रीम्स थी या फिर टू ब्रांचेस थी उनमें हमने डिवाइड कर दिया। नंबर वन इज फिजिकल साइंस, सेकंड वन इज बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो सारी किसमें आ गई, फिजिकल साइंस में। और जितनी भी लिविंग थिंग्स है लाइक एनिमल्स है, ह्यूमन बीइंग्स है, प्लांट्स है, ये सारी क्या है, लिविंग थिंग्स है, तो इन सबको हम किसमें करेंगे, बायोलॉजिकल साइंस में रीड करेंगे। इसके बाद हमने देखा कि फिजिकल साइंस को फिर आगे सब डिवाइड कर दिया 5 डिस्टिंक्ट ब्रांचेस में, ठीक है। कौन कौन सी ब्रांचेस थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी। 5 ब्रांचेस में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिजिक्स में हम क्या रीच करते हैं, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन कॉल्ड फिजिक्स। केमिस्ट्री में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो आ जाएंगे। एस्ट्रोनॉमी में जो स्टार्स की स्टडी है जितनी भी वो सारी आ जाती है। जियोलॉजी में द स्टडी ऑफ अर्थ and metrology is concerned about the study of weather, ठीक है बेटे।
फिर हमने आगे लिखा है कि फिजिक्स को फिर सब डिवाइड कर दिया है 9 ब्रांचेस में। नंबर 1 है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो किस तरह से मूव कर रहे हैं, उनकी मूवमेंट क्या है, उनका कॉज इफेक्ट, ये सारा देखेंगे। सेकंड का हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट में क्या आ जाता है कि हीट किस तरह से प्रोड्यूस होती है, मोड ऑफ ट्रांसफर क्या है, हीट का इफेक्ट क्या है, ठीक है। ये जितनी भी बातें हैं ये सारी इसमें आ जाएंगी हीट में। इसके बाद हमारे पास आ जाती है साउंड। साउंड की फिजिकल एस्पेक्ट्स क्या है, यानी कि साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होती है, साउंड की प्रॉपर्टीज क्या है। मीडियम हम देखेंगे साउंड का कि क्या मीडियम है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है लाइट। लाइट में हमारे इंस्ट्रूमेंट्स आ जाएंगे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी हैं ये सारे, लाइक माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, ये सारी जो है हम किसमें स्टडी करेंगे, लाइट में। इनकी कंप्लीट चैप्टर है आपकी बुक में जो कि हम रीड करेंगे, अभी जस्ट डेफिनेशन आपको बताई जा रही है। फिर हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से प्रोड्यूस होती है, करंट क्या है, वोल्टेज क्या है, मैग्नेटिज्म के साथ रिलेशनशिप क्या है, ये जितनी भी बातें हैं ये सारी फिजिक्स की इस ब्रांच में हम डील करेंगे। फिर हमारे पास आ जाती है एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स में एटम का स्ट्रक्चर क्या है, एटम कैसे बनता है, एटम की प्रॉपर्टीज क्या है, ये सारी जो बातें हैं ये इसमें आ जाएंगी एटॉमिक फिजिक्स में। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बेटे न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम क्या देखते हैं, एटम का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स जो है वो प्रेजेंट हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, प्रोटॉन क्या चीज है, न्यूट्रॉन क्या चीज है, इनका बिहेवियर क्या है, ठीक है, इनके रिलेशनशिप आपस में क्या है, ये सारी बातें आ जाएंगी न्यूक्लियर फिजिक्स में। फिर हमारे पास आ जाती है प्लाज्मा फिजिक्स, ठीक है। अब प्लाज्मा फिजिक्स में क्या होगा, स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि जो मैटर की फोर्थ स्टेट है आयनिक स्टेट, इसके बारे में हम रीड करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी प्रोडक्शन, ये कहाँ कहाँ पर प्रोड्यूस होती है, किधर प्रेजेंट होती है आयंस, ये जो बातें हैं सारी कहाँ आ गई, प्लाज्मा फिजिक्स में। फिर हमारे पास आ जाती है जियोफिजिक्स। अब जियोफिजिक्स क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। जो अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो कैसा है, अर्थ की ऑर्बिटल स्पीड क्या है, ये जितनी भी सारी बातें हैं वो किसमें आ जाएंगी, जियोफिजिक्स में। तो बेटे यहाँ पर हम अपना जो लेक्चर वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अभी ये जो आपका इंट्रो टू फिजिक्स है ये कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। इसमें अभी मैंने आपको जस्ट फर्स्ट पैराग्राफ जो है आपकी बुक का टॉपिक 1.1 ये आपको बताया है, ठीक है, और ब्रांचेस बताएंगे, आपने इन सबको याद करना है, ये जितनी भी डेफिनेशन है आपकी बुक में इन सबको आपने लर्न करना है, ठीक है। यहाँ पर अब हम वाइंड अप करते हैं और यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर। सी यू, अल्लाह हाफिज़। बोर्ड मार्कर